in mathematical logic, you'll have to check the state. You have to see the difference between the sentence and the statement. So the first exercise is related with that only. What are sentences and what are statement? Okay. So here I'm writing sentences. Any form, any form, whether it is simple if you're adding, questioning, ordering, exclamatory, all comes under sentences. All comes under sentences. So all the sentences means all the one liner or whatever it is, question, interrogative, imperative, whatever type, all comes under sentences. But there is a restriction for statement. The first, what is statement? Statement is that kind of sentence which have truth value. Truth value means the statement can be true or can be false, but the sentence need not be. Statement can be true, can be false. Okay. So now I'll tell you, if suppose I'm saying rainbow is having 7 color. Yeah, rainbow have 7 colors. Any form is a sentence, means it is a sentence, as well as it is also a statement, because rainbow is having 7 colors. Yes, it is true. It is true. So it is a statement as well. It is a statement as well. So the sentence which have truth value, whether it is positive or negative, is okay, but it must have some truth value. Then only that sentence is called as statement. If suppose I'm writing, what's your name? What's your name? This is an interrogative, questioning. Someone is asking you, what's your name? Yeah, what is your name? So it is a sentence. Any form is a sentence. But when it comes to statement, what is your name? Can we have its truth value? Truth value means या तो true या तो false. क्या ये statement true या false हो सकता है क्या? What is your name? You'll say, sir, ये तो false statement है. No. If it is question mark, means we don't have its truth value. They are asking me, they are asking me something. So in that case, it is not a statement. ये statement नहीं है, because we don't know the truth value. Truth value मतलब दो ही लाइनर, या तो ट्रू या तो फॉल्स. बट व्हाट इज योर नेम का ट्रूथ वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता. दे आर आस्किंग मी समथिंग. तो इन दैट केस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, बट इट इज अ सेंटेंस. एनी फॉर्म इज अ सेंटेंसेस. तो यहाँ पे जो तुम्हारा फर्स्ट एक्सरसाइज है, इट डील्स विद दी, तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि द गिवन सेंटेंसेस में कौन कौन से स्टेटमेंट हो सकते हैं. तो उसका एक छोटा सा मैं यहाँ पे क्राइटेरिया डिसाइड कर लेता हूँ. क्राइटेरिया ये है कि अगर कोई भी सेंटेंस अगर वो क्वेश्चनिंग हुआ तो डेफिनेटली स्टेटमेंट तो नहीं होगा. तो आई से इफ इट इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इट विल नॉट बी अ स्टेटमेंट. दूसरा, इंपरेटिव. इंपरेटिव मतलब ऑर्डर. ऑर्डर, इफ यू आर गिविंग ऑर्डर और रिक्वेस्टिंग, so it won't come under statement. Suppose I'm asking you, please give me a glass of water. I'm requesting you, please give me a glass of water. It's an imperative. You are requesting, humbling. So now it is a statement, it is a sentences, we know. But statement hai kya? Please give me a glass of water. It means तुम किसी से पूछ रहे हो कि मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ. इसका मतलब ये है कि ये जो तुमने बोला सेंटेंस, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, इसका कोई ट्रुथ वैल्यू नहीं है कि ये जो सेंटेंस है ये ट्रू है कि फॉल्स है. ठीक है. तो अगेन इंपेरेटिव क्वेश्चन भी तुम्हारे पास स्टेटमेंट नहीं होते हैं. तीसरा, एक्सक्लामेटरी. एक्सक्लामेटरी, इंट्रोगेटिव में लास्ट में क्वेश्चन मार्क,
एक्सक्लेमेटरी में लास्ट में आ जाएगा एक्सक्लेमेशन साइन। इसमें तुम्हारे पास क्या रहेगा, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल डे इट इज। सो अभी तुम्हारे पास क्या है, दिस सेंटेंस डज नॉट हैव, इट इज एन एक्सप्रेशन। ये किसी के ट्रूथ या फॉल्स पे डिपेंड नहीं करता, इट इज एन एक्सप्रेशन। हर एक का एक्सप्रेशन अलग अलग हो सकता है। सो एक्सप्रेशन कांट बी अ स्टेटमेंट बिकॉज वी डोंट नो कि वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, तो इट कांट बी अ स्टेटमेंट। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी स्टेटमेंट में नहीं आते। एंड फोर्थ वन इज कॉल्ड एज ओपन सेंटेंस। ओपन सेंटेंस मतलब ये होता है कि जो भी सेंटेंस है जिसको एक्सप्लेन करना है या जिसके बारे में एक्सप्लेन करना है, मुझे वही नहीं पता कि वो किसके बारे में कहना चाहता है, वॉट ही वॉन्ट टू टेल्स अबाउट। तो अगर मुझे नहीं पता कि किसके बारे में बोल रहा है, सो इट इज एन ओपन सेंटेंस और वो भी स्टेटमेंट नहीं होते। एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे मेरा रेनबो इज हैविंग 7 कलर्स। अगर रेनबो को हटा के अगर ये लिखा होता इट इज हैविंग 7 कलर, बट ये जो इट ये रिप्रेजेंट किसको करता है, वी डोंट नो। तो दिस कम्स अंडर ओपन सेंटेंसेस। मतलब जब तुम्हें उस चीज के बारे में एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि किसके बारे में वो कहना चाहते हैं या व्हाट दे वांट टू से अबाउट व्हाट, कि क्या है ये, so in that case also it is an open sentence and it is not a statement. So these are the four category in which the given sentence can not be a statement. Again I am repeating, अगर चार टाइप में आ गए, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चनिंग हुआ तो वो स्टेटमेंट नहीं है। इंपरेटिव मतलब ऑर्डर हुआ और रिक्वेस्टिंग हुआ तो वो भी स्टेटमेंट नहीं है। एक्सक्लामेटरी हुआ तो भी वो स्टेटमेंट नहीं है। ओपन सेंटेंस हुआ मतलब जिसमें मुझे पता नहीं कि सब्जेक्ट है क्या, किसके बारे में कहना चाहते हैं, सो अगेन इट इज not a statement. So if the sentence comes under these four categories, so they are not a statement. Other than this, बाकी जो भी टाइप आएगा they are statement। और अगर statement है तो that statement can be true और can be false। जैसे रेनबो इज हैविंग 8 कलर्स अगर बोल दिया होता, या रेनबो इज हैविंग 9 कलर्स, अगर कलर्स बढ़ा दिए तो भी स्टेटमेंट है, बट ट्रुथ वैल्यू फॉल्स हो जाएगी बस। तो स्टेटमेंट जरूरी नहीं कि एवरी टाइम ट्रू होना चाहिए, स्टेटमेंट फॉल्स भी हो सकता है, बट स्टेटमेंट होने के लिए कंडीशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 1.1। Okay, so let's start. State which of the following sentences are statement. Justify your answer if it is a statement. Write down its truth value. याद रखो, ट्रूथ वैल्यू का मतलब ये होता है कि वो स्टेटमेंट या तो ट्रू रहेगा या तो फॉल्स रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले विल स्टार्ट। और याद रखो, अगर तुम्हारे पास ये चार टाइप आए, चार टाइप मतलब कौन कौन से, इंट्रोगेटिव हुआ, इंपरेटिव हुआ, एक्सक्लामेटरी हुआ या ओपन, ये चार टाइप के अगर सेंटेंस है तो वो स्टेटमेंट नहीं होते, दे आर नॉट अ स्टेटमेंट। फर्स्ट, state which of the following sentences are statement. Justify your answer if it is a statement. Write down its truth value. I'm starting with the first question. A triangle has n sides. A triangle has n sides. किसी में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन भी नहीं है, एक्सक्लामेटरी भी नहीं है, ऑर्डर भी नहीं है और ओपन भी नहीं है।
तो इट इज अ स्टेटमेंट, तो क्या लिखेंगे आंसर फर्स्ट में, इट इज अ स्टेटमेंट। अब इसका ट्रूथ वैल्यूज लिखना है, मतलब या तो ट्रू रहेगा या तो फॉल्स रहेगा। तो ट्राइंगल है तो डेफिनेटली ट्राइंगल ट्राई 3 साइड होती है, बट यहाँ पे क्वेश्चन बोला कि इट हैज n साइड, तो देयरफॉर लिखेंगे इट इज, या द ट्रूथ वैल्यू, द ट्रूथ वैल्यू of the given statement is false. The truth value of the given statement is false. Second, बस you have to make sure कि वो 4 टाइप में अगर आ गया तो स्टेटमेंट नहीं है, और अगर इस 4 टाइप में नहीं आ रहा है तो स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट है। The sum of interior angles of a triangle is 180 डिग्री। तो सबसे पहले ट्रूथ वैल्यूज नहीं चेक करना, पहले ये चेक करना है कि वो स्टेटमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। The sum of interiors angle of a triangle is 180 degree। सिंपल सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव नहीं, इंपेरेटिव नहीं, एक्सक्लेमेटरी नहीं, ओपन नहीं, तो लिखेंगे यस इट इज अ स्टेटमेंट एंड द ट्रूथ वैल्यूज, अब चेक करेंगे ट्रूथ वैल्यूज क्या होगा। अब सम ऑफ इंटीरियर 180 डिग्री होता है यस, तो द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। तो जैसा मैंने ऊपर 2 लिखा पूरा इसी फॉर्म में लिखना है, ठीक है। थर्ड, यू आर अमेजिंग, तो ये तो एक्सक्लेमेटरी में आ गया, और एक्सक्लेमेटरी का लास्ट में याद रखना कि वो एक एक्सक्लेमेशन साइन रहेगा। तो यहाँ पे तुम्हें लिखना है इट इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस hence it is not a statement। तो ये स्टेटमेंट नहीं है, और अगर स्टेटमेंट नहीं है तो इसका ना ट्रूथ मतलब इसका ट्रूथ वैल्यूज भी नहीं निकालना है, ठीक है। फोर्थ, प्लीज ग्रांट मी अ लोन, तो यू आर रिक्वेस्टिंग, तो इट्स एन इंपरेटिव सेंटेंस। तो इंपरेटिव सेंटेंस में तुम्हारे पास क्या रहेगा, स्टेटमेंट नहीं रहेगा, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इट इज एन imperative sentence, so therefore it is not a statement। Fifth, root minus 4 is an irrational number, तो नॉर्मल सेंटेंस है, तो इट इज अ स्टेटमेंट। क्योंकि चारों कैटेगरीज में नहीं आ रहा है, इट इज अ स्टेटमेंट। और रूट माइनस 4 इज एन इरेशनल नंबर, एक्चुअली अगर रूट 4 होता तो 2 विच इज रैशनल। इरेशनल मतलब रूट में वैल्यू कोई भी जिसका आंसर नहीं आना चाहिए, जैसे रूट 5 रूट 7, बट रूट के अंदर पॉजिटिव होना चाहिए। अगर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ रहा है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इरेशनल नहीं है। तो मतलब ये जो नंबर है रूट माइनस 4, एक्चुअली इसका आंसर सॉल्व करने पाएगा 2i विच इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इरेशनल नंबर गलत है। तो मतलब इट्स ट्रूथ वैल्यू या द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। सिक्स्थ क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक चीज और समझना है कि अगर कोई भी एक्सप्रेशन आ रहा है, कोई भी एक्सप्रेशन, चाहे वो क्वाड्रेटिक रहे, क्यूबिक रहे, या कुछ भी रहे, तो सबसे पहली बात कि वो तुम्हारे पास इंट्रोगेटिव में नहीं आएगा, इंपेरेटिव में नहीं आएगा, और एक्सक्लेमेटरी में नहीं आएगा, और ओपन सेंटेंस में आ सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है
कि अगर तुम्हें x की वैल्यू मेंशन कर दिया है तो ठीक है, फिर अगर मेंशन नहीं किया है तब वो ओपन सेंटेंस में काउंट होता है, मतलब तब वो स्टेटमेंट नहीं रहेगा। लेकिन अगर तुम्हें वैल्यूज मेंशन किया है तो फिर वो हो सकता है स्टेटमेंट है। फिर तो कोई भी एक्सप्रेशन रहा मैथमेटिकल, वो स्टेटमेंट होते हैं। ठीक है, कोई भी फॉर्मूला अगर आ गया, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ ट्रिगो का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या a प्लस बी द होल स्क्वायर इक्वल a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अगर ये आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये स्टेटमेंट है और ये यूनिवर्सली ट्रू भी है, तो मतलब इसकी ट्रूथ वैल्यूज ट्रू रहेगी एवरी टाइम। तो ये स्टेटमेंट भी है और ट्रू भी है। तो याद रखना एक चीज, कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज ऑलवेज ट्रू, इज ऑलवेज एन स्टेटमेंट, इज ऑलवेज एन स्टेटमेंट। और चेक करना कि वो ट्रू होने के लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या। अगर कहीं माइनस आ गया तब नहीं रहेगा फिर। तो जैसे भी यहाँ पे तुम्हारे पास जो सिक्स्थ क्वेश्चन दिया हुआ, इन द सिक्स्थ क्वेश्चन वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0 implies x is equal to -4 and or x is equal to -2. तो it is a statement. तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आर स्टेटमेंट। सेकेंड चीज, अभी तुम्हें चेक करना है कि ट्रूथ वैल्यूज ट्रू है कि फॉल्स। तो हम लोग -4 पुटअप करके देखेंगे कि सेटिस्फाइड हो रहा है क्या, जीरो आ रहा है क्या, सिर्फ एलएचएस में पुटअप करेंगे। अगर जीरो आ रहा है तो यस ट्रू है, नहीं आया तो फॉल्स लिख देंगे। -4 पुटअप करेंगे, -4 का स्क्वायर 16, -6 इंटू -4 24 और +8, तीनों प्लस में ही है तो जीरो तो आएगा नहीं। तो सेकंड तो चेक ही नहीं करना, पहला ही नहीं अगर वेरीफाई हुआ तो, क्योंकि सब वेरीफाई होना चाहिए। तो द ट्रूथ वैल्यूज of the given statement is false. नेक्स्ट है, सिक्स हो गया। ओके सेवेंथ, अभी थोड़ा शॉर्टकट वे में लिखूंगा, स्टेटमेंट पूरा नहीं लिखूंगा। ही इज एन एक्टर, सो नॉट अ स्टेटमेंट, क्योंकि इट इज एन ओपन सेंटेंस, वी डोंट नो अबाउट कि हु इज ही, नॉट अ स्टेटमेंट। रीजन, ओपन सेंटेंस। एट्थ, डिड यू ईट लंच येट, तो इट इज एन इंट्रोगेटिव, तो अगेन नॉट अ स्टेटमेंट। रीजन, इंट्रोगेटिव। Ninth, have a cup of cappuccino. So it is imperative, kind of imperative. So it is not a statement. Q, it is an imperative sentence. 10th, its formula x plus y the whole square, x square plus 2xy. So it is a statement. Truth value is true. Okay. 11th, every real number is a complex number. So it is a statement, मतलब सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि बाकी सब में तो आ नहीं रहा है, क्वेश्चन नहीं है, एक्सक्लेमेटरी नहीं है। तो इट इज अ स्टेटमेंट। और ट्रूथ वैल्यूज, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यस इट इज अगेन ट्रू। क्योंकि समझो रियल नंबर मैंने लिखा 3, कोई भी रियल नंबर मतलब विदाउट आई इज 3, बट 3 को मैं 3 प्लस 0 आई भी तो लिख सकता हूँ ना, तो इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। नो डाउट इट इज अ रियल नंबर ओनली, but adding 0 I can make it complex number. तो मतलब every real number is a complex number by adding 0 I, so it is true.
12th, 1 is a prime number. तो स्टेटमेंट है बट ट्रू नहीं है बिकॉज प्राइम नंबर स्टार्ट विथ 2, 1 प्राइम में नहीं आता है, तो इट इज फॉल्स. 13, with the sunset the day ends. तो तुम्हारे पास यहाँ पे इट इज अ स्टेटमेंट बट ये फॉल्स है. डे ऐसा थोड़ी नहीं कि सनसेट खत्म हुआ और डे एंड हो गया. इट इज कंप्लीट 12 पीएम, मतलब रात का जब 12 पीएम होगा तो जाके डे एंड होता है. इट इज नॉट विद द सनसेट. तो इट इज अ स्टेटमेंट, नॉर्मली स्टेटमेंट है बट ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है. 14, 1 फैक्टोरियल इज 0. अगेन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है तो स्टेटमेंट है बट फॉल्स है बिकॉज 1 फैक्टोरियल 1 होता है एक्चुअली. 15, इनइक्वालिटी है फिर भी स्टेटमेंट है. 3 plus 5 which is 8, 8 is greater than 11. 3 plus 5 8, 8 is greater than 11. No, it's false. फिफ्टींथ हो गया. देन 16, the number pi is an irrational number. Yes, that's true. So it is a statement and its truth value is true. 17, x square minus y square equal to x plus y, x minus y. Again, it is an identity. So it is again true. Statement and true. The number 2 is the only even prime number. Yes, statement and as well as true. 19th, two coplanar lines are either parallel or intersecting. Again, statement and truth values is true. So line may be parallel or not parallel means intersecting. 20. The number of arrangement of a 7 girls in a row for a photograph is 7 factorial. तो ये फैक्टोरियल साइन है. एक्सक्लामेशन साइन तो है बट मैथमेटिक्स में भी ये साइन होता है, इसको फैक्टोरियल बोलते हैं. तो ये ऐसा मत समझना कि लास्ट में फैक्टोरियल में एंड हो रहा है तो ये स्टेटमेंट नहीं है. तो इट रिगार्डिंग विद द परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो इट इज अ स्टेटमेंट एंड ट्रूथ वैल्यू इज ऑल्सो ट्रू, करेक्ट है. 21, गिव मी अ कंपास बॉक्स. सो तुम मांग रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो नॉट अ स्टेटमेंट, रीजन, imperative. 22, bring the motor car here. Again, not a statement, you are ordering. Types under imperative. 24, if a plus b is 7, मतलब the addition of two number is less than 7, where a and b are greater than 0, मतलब they are positive number.
तो डेफिनेटली a is less than 7 and b is less than 7. तो it is a statement, मतलब कहीं भी ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन है या समथिंग है, इट इज अ स्टेटमेंट. और ट्रूथ वैल्यूज भी ट्रू है. ट्रू क्यों है? अगर दो नंबर का एडिशन 7 हो रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली वो दो नंबर 7 से छोटे ही रहेंगे ना, क्योंकि दोनों को ऐड करने के बाद 7 आ रहा है, तो दोनों नंबर 7 से डेफिनेटली स्मॉलर रहेंगे. नेक्स्ट 25. कैन यू स्पीक इन इंग्लिश? तो ये तुम्हारा क्वेश्चन मार्क है, विच इज इंट्रोगेटिव, तो इट इज नॉट अ स्टेटमेंट. इंट्रोगेटिव. So this is all about your first exercise. ठीक है. Then first exercise over. Now we are starting with the second exercise. यहाँ पे we have to understand about the logical connectives. The logical connectives, there are total 5 connectives, and that connectives we are going to use throughout the chapter now. पूरे चैप्टर में भी तुम्हें ये कनेक्टिव्स यूज करना है. तो तुम्हें हर एक कनेक्टिव का सिंबल्स और उसका नेम, मतलब करिस्पॉन्डिंग नेम क्या है, तुम्हें वो दोनों पता होना चाहिए. सो हियर वी हैव अ टेबल. मैं फिर भी पूरा टेबल लिख दे रहा हूँ. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. लॉजिकल कनेक्टिव्स. सबसे पहला आता है एंड. दूसरा आता है और. तो कनेक्टिव्स क्यों को बोलते हैं? क्योंकि दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करता है. जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट एंड आई विल बाय फ्रूट्स एंड वेजिटेबल. तो आई एम गोइंग टू मार्केट, ये मेरा पहला स्टेटमेंट है. एंड अगर मैं एंड नहीं लिखा तो वो दोनों स्टेटमेंट कनेक्ट होंगे ही नहीं. आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम बाइंग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, तो सेंटेंस बराबर नहीं, कंप्लीट नहीं है. सो वेन एवर वी हैव मोर देन वन, से अगर ज्यादा हो गया, मोर देन वन, मे बी मतलब टू और मोर देन टू, यू हैव टू पुट कनेक्टिव बिटवीन द टू स्टेटमेंट. एंड दैट कनेक्टिव्स आर हियर आई एम राइटिंग. एंड हो सकता है, और हो सकता है. सो दीज आर नथिंग बट द कनेक्टिव्स. एंड और. एंड का सिंबल इट्स ए शेप, और it is ulta V shape. Third, if then, it is single arrow. Fourth, if, you can put double F or else you can put single F as well. If and only if, it is double arrow. Fourth, it is negation. It is like this. So these are the 5 connectives and these are the symbols. These symbols are very, very important. Logical connectives and symbols. And, or, if then, if and only if, and negation. These are 5 symbols. Okay. Then name of corresponding compound statement. Corresponding compound statement. And रहेगा,
तो उस कंपाउंड स्टेटमेंट को बोलते हैं कंजंक्शन। और रहा, उसे बोलेंगे डिसजंक्शन। इफ देन इसको बोलेंगे इम्प्लीकेशन। डबल एरो रहा, इसको बोलेंगे डबल इम्प्लीकेशन। एंड नेगेशन, नेगेशन को मतलब नॉट बोलते हैं। नेगेशन मीन्स जस्ट नॉट। तो एक्चुअली यहाँ पे मैं नॉट लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं नेगेशन। या तो नेगेशन बोलो या इसको नॉट, दोनों बोल सकते हो वैसे। ठीक है। सो दीज आर द 5 symbols which is very very important. I shall start with exercise, तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी अभी। तो 5 symbols से एंड, और, बता दे रहा हूं मैं, एंड, और। एंड मतलब ए लेटर जैसा एंड, और मतलब उल्टा ए। देन इफ देन मतलब सिंगल एरो। इफ एंड ओनली इफ, डबल एरो। एंड द लास्ट वन इज नेगेशन या नॉट, जिसको ऐसा टिल्ड साइन बोलते हैं, इसको TILDE, टिल्ड साइन। मतलब एस को स्लीपिंग लेटर में लिख दो, स्लीपिंग में एस लेटर को। So this is not or else negation. So these are the 5 symbols which we are going to use in the throughout the exercise. मतलब second onwards हर जगह कहीं ना कहीं तो ये आएगा ही आएगा, every exercise में आएगा। तो these symbols are very very important. Now let's start with the exercise. इसे यूज कैसे करना है? अभी एक्सरसाइज छोटे छोटे ही है और कंसेप्ट भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, फटाफट हो जाएंगे। एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म। तुम्हारे पास स्टेटमेंट दिया हुआ है, उन्हें सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर जो मैंने सिंबल्स दिए हैं वो सब भी यूज करना है तुम्हें। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इट इज गिवन एज ई इज अ वोवेल और वोवेल और 2 + 3 = 5। यहाँ पे देखा जाए तो मेरे पास दो स्टेटमेंट दिए हुए और बीच में लॉजिकल कनेक्टिव्स और दिया हुआ है। ठीक है। तो जो दो स्टेटमेंट है कनेक्टेड बाय लॉजिकल कनेक्टिविटी और, तो दोनों सेंटेंस को लेट करेंगे, एक को पी लेंगे और एक को क्यू ले लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ लेट, दिस इज माय सॉल्यूशन। तो कभी भी अगर तुम्हें सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो जितने भी स्टेटमेंट है उनको लेट कर लो। अगर दो स्टेटमेंट है तो पी एंड क्यू, और अगर तीन रहा तो पी क्यू एंड आर। फिलहाल दो है तो एक को पी ले लेंगे और एक को क्यू। पी क्या रहेगा? ई इज अ वोवेल, क्यू इट विल बी 2 + 3 = 5। ठीक है, दोनों लिख दिया। अब नाउ विल राइट द सिंबॉलिक फॉर्म। तो जो तुम्हारे पास वर्डिंग में लिखा है इट इज कॉल्ड एज वर्बल फॉर्म। तो वर्बल फॉर्म को यू हैव टू राइट इन सिंबॉलिक फॉर्म। तो ई इज अ वोवेल, तो उसका सिंबल मैंने ले लिया है पी, यहाँ पे दूंगा मैं पी। 2 + 3 = 5, द सेकंड स्टेटमेंट विच आई हैव टेकन एज क्यू, तो यहाँ पे लिख दूंगा क्यू।
बीच में और है एंड और का सिंबल इज उल्टा ए होता है. डन. दैट इज पी और क्यू. दैट्स इट. दिस इज माय सिंबॉलिक फॉर्म. तो करना कैसे है, तुम्हारे पास जो भी सेंटेंस दिया है उन्हें पहले लेट करना है. नॉर्मली दो ही सेंटेंस आते हैं, उससे ज्यादा नहीं आएंगे. तो जो भी सेंटेंस या स्टेटमेंट है उसे लेट करना है. और जो भी कनेक्टिविटीज है, जैसे यहाँ पे और दिया था तो मैंने और यूज किया. इनकेस समझो और नहीं बल्कि एंड लिखा होता तो आई विल यूज एंड. तो जो रहेगा वो यूज करना तुम्हें. ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड. मैंगो इज अ फ्रूट बट पोटैटो इज अ वेजिटेबल. तो सेकंड स्टेटमेंट में अगेन दो है तो एक को पी और एक को क्यू ले लेंगे. और कनेक्शन बीच में बट दिया है. तो पहला है मैंगो इज अ फ्रूट. और कनेक्टिव छोड़ दो. पोटैटो इज अ वेजिटेबल. सो नाउ विल राइट इन सिंबॉलिक फॉर्म. सिंबॉलिक फॉर्म मतलब वही जो बीच में है उसको कनेक्टिविटी जो भी रहेगा वो, और सेंटेंस को पी और क्यू लिख देंगे. बट यहाँ पे तो बट दिया है. याद रखना कभी भी क्वेश्चन में अगर बट आ जाए, वाइल आ जाए, दो आ जाए, ऑल दो आ जाए, ये सबको एंड के अंडर ही कंसिडर करते हैं. मतलब ये सब एंड के अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट नेम है. बट, वाइल, और अगर आया, और मतलब ओ आर, तो उसका कोई दूसरा नाम नहीं है, वो ओ आर ही रहेगा. तो उसको तो वही लेना. लेकिन एंड जरूरी नहीं कि एंड लिख कर ही आए, उसके अलावा ये सब डिफरेंट वर्ड्स भी आ सकते हैं. तो सिंबल्स एंड का यूज करेंगे. तो यहाँ पे बट दिया मतलब एंड का ही सिंबल यूज करेंगे. तो मैंगो इज अ फ्रूट, पी, एंड, बट मतलब वही एंड. पोटैटो इज अ वेजिटेबल. तो ये तुम्हारा हो गया सेकंड का आंसर. डन. थर्ड, मिल्क इज व्हाइट और ग्रास इज ग्रीन. तो मिल्क इज व्हाइट, पी ले लेंगे. ग्रास इज ग्रीन, क्यू ले लेंगे. और मैं यहाँ पे आंसर पी और क्यू. ठीक है. आई लाइक प्लेइंग बट नॉट सिंगिंग. आई लाइक प्लेइंग बट नॉट सिंगिंग. तो आई लाइक प्लेइंग, पी ले लेंगे. आई डू नॉट लाइक सिंगिंग. नॉट सिंगिंग स्टेटमेंट नहीं है, इनकम्प्लीट है, तो उसको प्रॉपर लिखो ऐसा. आई लाइक प्लेइंग, पी ले लेंगे. आई डू नॉट लाइक सिंगिंग, क्यू ले लेंगे. और बीच में बट दिया है तो पी एंड क्यू. नेक्स्ट, इवन दो इट इज क्लाउडी इट इज स्टिल रेनिंग. इवन दो, ऑल दो या दो, सब एक में ही आता है एंड के अंदर. तो इट इज क्लाउडी, इसको लेट नहीं करें क्योंकि ये तो कनेक्टिविटीज है ना. जैसे और, बट इवन दो को भी लेट नहीं करना है. इट इज क्लाउडी विच इज माई पी. इट इज स्टिल रेनिंग, इट इज माई क्यू. दिस इज पी, दिस इज क्यू. इवन दो इट कम्स अंडर एंड. तो इसका अगर सिंबॉलिक फॉर्म बोलूंगा तो इट विल बी पी एंड क्यू. डन. ठीक है. जो एग्जाम्पल टू है, राइट द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो अगर तुम्हें अगर ट्रूथ वैल्यू निकालना है और बीच में कनेक्टिविटीज है जैसे कि एंड है या और है, तो तुम्हें वहां पे उनके ट्रूथ टेबल पता होने चाहिए. व्हाट यू शुड नो, ट्रूथ टेबल. तो हियर आई एम राइटिंग द ट्रूथ टेबल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हें याद करने. तो जितने कनेक्टिविटीज है उतने ही ट्रूथ टेबल भी है. ट्रूथ टेबल. तो जो पहला ट्रूथ टेबल है वो है एंड का. दूसरा ट्रूथ टेबल जिसका साइन ए या सिंबल. दूसरा ट्रूथ टेबल और विच इज उल्टा वी. तीसरा ट्रूथ टेबल नेगेशन या नॉट जिसका सिंबल लाइक दिस. फिर चौथा
if then, उसका other name implication which is single arrow, and fifth if and only if which is double arrow or else double implication. ठीक है, तो दीज आर द 5. तो हर एक का टेबल है जो तुम्हें याद करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड और negation, if then, if and only if. तो this is first statement P Q. ये ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे याद करना है, क्योंकि मैंने बताया ये जो चीज पढ़ रही है आगे बहुत काम आएगा अभी. ठीक है, टेबल में फिल कर दे रहा हूँ अभी. तो अगर एंड बोला तो P और Q, और मुझे P एंड Q निकालने के लिए बोलेंगे. तो P और Q याद रखो, ट्रूथ टेबल मतलब हम लोग को ट्रूथ वैल्यू पे चेक करना है. तो P और Q जो दो स्टेटमेंट रहेंगे या तो ट्रू रहेंगे या तो फॉल्स रहेंगे. तो उनकी पॉसिबिलिटी रहेगी या तो दोनों ट्रू, या तो एक ट्रू एक फॉल्स, या तो पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, या तो दोनों फॉल्स. दो स्टेटमेंट के लिए पैटर्न फिक्स है एवरी, चाहे वो एंड रहे और रहे इफ देन. तो दो स्टेटमेंट के लिए टी टी, टी एफ, एफ टी और एफ एफ. अगेन दो स्टेटमेंट के लिए टी टी, टी एफ, एफ टी और एफ एफ. टी टी, सॉरी, पी एंड क्यू, टी टी, टी एफ, एफ टी, एफ एफ. दिस इज कॉल्ड एज इनपुट. अभी हम लोग आउटपुट निकालेंगे. नेगेशन में एक ही स्टेटमेंट रह गया, तो ट्रू या तो फॉल्स. अब हम लोग ये जो मैंने ड्रॉ किया दैट इज कॉल्ड एज इनपुट साइड. लास्ट कॉलम इज कॉल्ड एज आउटपुट. आउटपुट में क्या रहता है, इफ यू आर फाइंडिंग एंड में ये होता है कि अगर दोनों ट्रू रहा, दोनों स्टेटमेंट, तो ही ट्रू रहेगा, अदरवाइज इट इज फॉल्स. तो तुम्हें लास्ट का आउटपुट टेबल याद रखना है. इफ बोथ आर ट्रू देन ओनली इट इज ट्रू. तो ये एक इंपॉर्टेंट है पहला वाला. इसमें और में क्या होता है, अगर P और Q निकाल रहे हो, और में अगर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है तो ही फॉल्स रहेगा, अदरवाइज ट्रू. अगर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है मतलब F और F, देन ओनली इट विल बी F ओनली, अदरवाइज इट इज ट्रू. नेगेशन, नेगेशन में क्या होगा, P रहेगा तो उसका सिंगल नेगेशन निकाल. नेगेशन मतलब उल्टा कर देना है. तो जो ट्रू रहेगा वो फॉल्स और जो फॉल्स रहेगा वो ट्रू बन जाएगा. इफ देन मीन्स इट इज सिंगल एरो. तो अगर इफ देन निकाल रहे तो उसका आउटपुट क्या रहेगा, इफ देन में अगर ट्रू रहा P और Q रहा फॉल्स, दैट इज ट्रू फॉल्स. ट्रू फॉल्स रहा तो ही फॉल्स रहेगा, अदरवाइज ट्रू. तो इसमें ये इंपॉर्टेंट कंडीशन, ये मेन याद करना है कि पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स रहा देन ओनली इट विल बी फॉल्स, अदरवाइज इट विल बी ट्रू. डबल एरो मतलब P एंड Q, अगर डबल एरो तुम्हारे पास दिया हुआ है दोनों साइड, स्मॉल लेटर ले लेता हूं मैं. अगर दोनों एरो है तो दोनों ट्रू रहा तो ही ट्रू, और दोनों फॉल्स रहा तो ही ट्रू. मतलब टी टी रहा तो भी टी, और एफ एफ रहा तो भी टी. अगर अलग अलग रहा टी एफ और एफ टी, देन इट विल बी फॉल्स. ये तुम्हें पांच जो मैंने टेबल ड्रॉ किए, पांचों टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है. इनपुट सबका फिक्स है पी क्यू रहा तो, बट आउटपुट सबका वैरी हो रहा है, एंड में अलग है और में अलग है. तो ये तुम्हें ध्यान में रखना है या याद रखना है. ठीक है, तो
ये पूरा टेबल अच्छे से एक दो बार ड्रॉ कर लेना है प्रैक्टिस के लिए।